الرحمن الرحیم، میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ جو عید کا سیزن قریب آتا ہے یا ماہ رمضان قریب آتا ہے تو رویت حلال کمیٹی کی اہمیت اور اس کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ خبریں مفتی پوپل زئی کی طرف سے آتی تھیں، وہ ہمیشہ رویت حلال کمیٹی سے اختلاف کرتے تھے، اور اب مفتی پوپل زئی سے جو ہے وہ تنازعہ کم ہوا تو یہ تنازعہ اب فواد چودھری وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سے شروع ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ رویت حلال کمیٹی کی اب ضرورت نہیں رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، تو اس رویت حلال کمیٹی کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ وہ مطالبہ دوسری بار دہرا چکے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے اپنے مطالبے کو دہرایا ہے۔ آج ہم رویت حلال کمیٹی کی قانونی اور آئینی حیثیت پر بھی بات کریں گے اور ان تنازعات پر بھی بات کریں گے جو فواد چودھری اور رویت حلال کمیٹی کے درمیان ہو رہے ہیں۔ لیکن پہلے اس کا تاریخی تناظر کہ آج سے 46 برس قبل 1974 میں قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کرنے کی قرارداد پاس ہوئی۔ اس قرارداد کے ذریعے یہ ادارہ وجود میں آ گیا۔ باقی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اور اس کا قانون اور اس کے کام کا طریقہ کار 1974 سے لے کر اب تک 46 برس گزرنے کے باوجود اس کی رولز اینڈ ریگولیشن ڈرافٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے موجودہ چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور ان کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ حافظ عبدالقدوس صاحب ہیں، اور تقریباً ان کو 150 ان کے آبزرویٹریز ہیں جو مختلف علاقوں میں انہوں نے متعین کیے ہوئے ہیں اور وہ چاند دیکھنے کی شہادت دیتے ہیں۔ یوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں 150 سے زائد حفاظ علماء کرام کام کرتے ہیں جو چاند کی شہادت دیتے ہیں۔ ان کا مرکزی ہیڈ آفس جو ہے انہوں نے کراچی میں بنایا ہوا ہے، اور 1974 سے لے کر اب تک 46 برس گزرنے کے باوجود ان کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ طے نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کہیں پر بیان نہیں کیا گیا ہے، اور ان کی آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ شروع روز سے متنازع رہی ہے۔ یہ مرکزی رویت حلال کمیٹی دو حوالوں سے متنازع ہے۔ ایک تو اپنی لیگل حیثیت سے، لیگل سٹیٹس کے حوالے سے متنازع ہے، اور دوسرا واقعاتی اعتبار سے متنازع ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ، پاکستانی مسلمانوں کا ایک گروہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی شہادتوں پر یقین رکھتا ہے تو دوسرا طبقہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی شہادتوں پر یقین نہیں رکھتا، اور وہ طبقہ پشاور میں، کوئٹہ میں اور یعنی دو صوبوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی سے ہٹ کر عید منا لیتے ہیں، اور وہ روزہ بھی جو ہے وہ ان کے اعلان کے مطابق رکھ لیتے ہیں۔ اب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے 2016 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی، مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی نے سوال اٹھایا کہ رویت حلال کمیٹی کی آئینی حیثیت کیا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا قرارداد، اسمبلی کی قرارداد کی آئینی حیثیت ہو سکتی ہے کہ اگر ایک قرارداد پاس کر دی جائے، کوئی آئین اور قانون کے اندر اس کی ترمیم نہ کی جائے یا کوئی قانون وضع نہ کیا جائے تو وہ کیسے گورن کرے گا؟ بڑا جینون سوال تھا جو کہ مولانا حمداللہ جو اس وقت سینٹ میں مذہبی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور ان کے ساتھ جو کمیٹی کے دوسرے ممبران تھے انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا۔ اور اب قومی اسمبلی کے اندر 2019 میں پھر مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی نے یہ سوال اٹھا دیا کہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، اگر کہیں پر موجود ہیں تو ان کو اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ رویت حلال کمیٹی
1974 से काम कर रही है, लेकिन आज तक इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं बन सके हैं, उसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हो सका है। इस एतबार से तनाज़ात भी काफ़ी दफ़ा देखने में मिले हैं कि माह रमज़ान का चाँद हो या फिर शिवाल का चाँद, हर दफ़ा गुज़श्ता सालों में इख्तलाफ रहा है। कभी ईद जो है वो एक दिन पहले मना ली जाती थी, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फैसलों की पाबंदी नहीं की जाती थी। यूँ वाक़याती एतबार से भी तनाज़ात का शिकार है और कानूनी एतबार से भी तनाज़ात का शिकार है। अब फवाद चौधरी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में रोयत हलाल कमेटी की क्या हैसियत है, उसको रखने का क्या फ़ायदा है, उसके वजूद का क्या फ़ायदा है। अब फवाद चौधरी साहब चूँकि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने कल ये ऐलान भी कर दिया है कि ईद 24 मई सन 2020 को होगी, जबकि रोयत हलाल कमेटी ने वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से इख्तलाफ करते हुए ईद 25 मई बरोज़ सोमवार 2020 को मनाने का फैसला किया है। अब यूँ अभी जो है मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी आज अपना फैसला सुनाएगी, उनका क्या फ़ैसला आता है, लेकिन वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने अपना ऐलान कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने ईद 24 मई को मनाने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों के दरमियान तनाज़ात जो है वो रिकॉर्ड पर आ चुके हैं और दोनों के तनाज़ात में जो है अब वज़न किसका है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अवाम की अक्सरियत सोशल मीडिया पर मैंने देखा है और दीगर इदारों को भी मैंने देखा है, उन्होंने वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी की हिमायत करते हुए लोग नज़र आते हैं कि जब ये काम मेट ऑफिस का है, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये काम है, तो ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए। और काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि गुज़श्ता साल हुकूमत, मौजूदा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रोयत हलाल कमेटी को ख़त्म करने का इंदिया दिया था, लेकिन वज़ीर मज़हबी अमूर का बाद में एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि चाँद देखने पर या चाँद की वाक़याती शहादत पर जो तनाज़ात उठते हैं, उन तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए एक मज़ीद कमेटी बना दी है। रोयत हलाल कमेटी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, ये उनका मौक़िफ़ आया। और लेकिन वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी दूसरी बार अपना ये मुतालबा दोहरा चुके हैं कि रोयत हलाल कमेटी को अब ख़त्म कर देना चाहिए और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो है मेट ऑफिस के ज़रिए चाँद देखने का जो तरीक़ाकार है वो तय करें, वो ऐलान करें। अब यहाँ पर मौलाना मुफ्ती महमूद के पोते मुफ्ती मौलाना असद महमूद, मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो बड़ा अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक ऐसा इदारा जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, क्या कौम उनके फैसलों की पाबंद है? अब सवाल तो बड़ा अहम है। जाहिर है कि एक ऐसा सवाल जिसकी मौजूदगी में कि एक इदारे का आईनी स्टेटस नहीं है, एक इदारे का कानूनी स्टेटस नहीं है, तो फिर उनके फैसलों की कानूनी हैसियत क्या है, उनके फैसलों की आईनी हैसियत क्या है? क्या जिस इदारे का आईनी हैसियत ना हो, कानूनी हैसियत ना हो, तो क्या कौम ऐसे इदारे के फैसलों को फॉलो करने की पाबंद है? यकीनन अगर सवाल का अक्ली जायज़ा लिया जाए तो जवाब यही आता है कि ऐसे फैसलों पर पाबंदी नहीं की जा सकती है। सेनेट कायमा कमेटी मजहबी उमूर रोयत हलाल कमेटी की आईनी और कानूनी हैसियत पर जब गौर व फिक्र कर रही थी, तो इस हवाले से उन्होंने जो सवालात उठाए थे वो बहुत अहम सवालात थे। उन्होंने पहला सवाल ये उठाया कि रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान और चेयरमैन की तकर्री किस कानून के तहत की जाती है। उसके बाद उनका सवाल था कि इसके मेंबरान और चेयरमैन कब से हैं, कितने अरसे के लिए तैनात किए जाते हैं और कितने अरसे के लिए ये तैनात रहते हैं, उनकी ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है। यानी चेयरमैन को कितने अरसे के लिए
मुकर्रर किया जाता है और उनके मेंबरान को कितने अरसे के लिए रोहियत हलाल कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। जाहिर है अब जब सेनेट में ये सवाल उठाया गया तो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन भी मांग लिए। तो जवाब ये आया कि 1974 से लेकर अब तक इस इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशन वजूद में नहीं आ सके, महज कौमी असम्बली की एक करारदाद मौजूद है। अब सवाल ये है, क्या कौमी असम्बली की करारदाद एक कानून का मुतबादिल हो सकती है? कौमी असम्बली की करारदाद का एहतराम अपनी जगह, लेकिन याद रखिए एक कानून का बाज़ाब्ता एक तरीक़ाकार होता है। कानून का एक बिल पेश किया जाता है, बिल पर बहस की जाती है, बहस के बाद वो तमाम मेंबरान असम्बली उसके हक में वोट देते हैं। अगर वो कानून पास हो जाता है तो फिर ईवान बाला में भेजा जाता है। अगर ईवान बाला में पास किया गया हो तो वो ईवान ज़ेरी में भेजा जाता है। जब दोनों ऐवानों से कानून पास हो जाता है तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट जब उस पर अपनी असेंट देते हैं, असेंट देने के बाद जब तक वो कानून गजट में शाये ना हो तब तक उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती है। का एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये कानून का दर्जा नहीं रखती है। इसीलिए अगर देखा जाए आइन और कानून के पैराए में तो किसी भी तौर पर रोहियत हलाल कमेटी की आइनी हैसियत भी बिल्कुल नहीं है और कानूनी हैसियत भी बिल्कुल नहीं है। जब ऐसे इदारे जिनकी आइनी और कानूनी हैसियत ना हो तो उनके फैसलों की हैसियत पर भी सवालात पहले ही उठाए जा चुके हैं। मैंने दोनों तनाज़र आपके सामने पेश कर दिए, उसकी लीगल हैसियत भी आपके सामने पेश कर दी और उसकी वाक़याती हैसियत भी आपके सामने पेश कर दी। फैसला आपने करना है। उम्मीद है आज का मौजू आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत